Okay, students, I really wish you people are fine. And today I'm going to let you know about another topic, very interesting topic, which is known as vapor pressure. Or solid liquids में हम we're dealing with I think I have written the name of the chapter in a reverse manner. That's liquid and solids. So okay, fine. This portion is going to be discussed, but this portion is under discussion. So we're going to talk about liquids and their properties in the sense of vapor pressure. Students, vapor pressure जो है वो क्या होता है? It's a really big deal and big concept, right? इसमें I can help you in this way that whenever you just saw any kind of liquid in a container, right? It just really makes some kind of vapors in the air, and after some time it just makes some more vapors. So the quantity of vapors in the air is being increased, and now you know that there is not a lot more space in there. So space की कमी की वजह से अब ये vapors जो हैं they are been striking the walls of the container, and even though जो vapors वापस surface से टकरा रहे हैं they're going back to liquid state. Mean to say that that's a liquid state and that's a gaseous states of water molecules. Let's say water molecules as an example. तो ये जो liquids हैं, liquid molecules हैं, they're turning themselves into a vapors, and after turning themselves into a vapors, they are being gathering together. इनका जो है कह लें कि बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो गई है एक क्लोज सिलेंडर में. सिलेंडर अगर ओपन होगा तो यू नो दैट हवा में बहुत स्पेस है वेपर्स को सपोर्ट करने के लिए. तो वेपर्स जो हैं वो हवा में रहेंगे एंड दे विल बी atmosphere is quite big. It's a really big reservoir for a lot of gases, atmosphere. तो वेपर्स को भी वो जगह देता जाएगा एंड देयर विल नथिंग लाइक अ प्रॉब्लम. लेकिन यू नो व्हाट, अगर एक ख़ास टिपिकल एरिया में वेपर्स की तादाद बनती है तो वो वेपर्स ऊपर जाकर थोड़ा सा टेम्परेचर लो होने की बुनियाद पर कंडेंस हो जाते हैं, जिसे हम क्लाउड कहते हैं. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपसे डिस्कस करूंगा, बट द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज़ वेपर प्रेशर. तो लेट्स जस्ट क्लोज द सिस्टम. कंटेनर की बात करते हैं. सो कंटेनर में अब वेपर्स हैं एंड there are a lot more vapors, और वो अब वॉल ऑफ द कंटेनर पे ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और जो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर वो दोबारा कंडेंस हो रहे हैं. सो यू कैन से दैट कि a time will come when they will condense and they will evaporate, right? A time will come when some vapors will condense and some vapor is going to be evaporated. I mean to say, you're gonna say that the two process will be there. Evaporation, जो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की है, evaporation will be there, and the second process will be condensation. कंडेंसेशन का लफ्ज़ बच्चे काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं. सिंपली आप अगर एक पतीली है, इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, इस पर ढक्कन रख देते हैं, तो आपको पता है जो वेपर्स पतीली में से निकल रहे होते हैं तो वो आके जो उसका ढक्कन होता है पतीली का, किसी भी बर्तन का ढक्कन कह लें आप, तो उसके ऊपर वो वेपर्स कंडेंस कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. कंडेंस मीन इकट्ठे होना. तो इट जस्ट लिटरली मीन्स दैट यू आर जस्ट देयर इज नथिंग लाइक वेपर ओवर हियर, देन द वेपर्स आर कमिंग, taking their role, and the rate of evaporation is going to equal with the rate of condensation. So that's the concept, that vapor is being there in a lot more quantity, and they are something like they're forcing, like let's say that कि अब ये हमारे पास वेपर है, ये भी वेपर है, ये भी वेपर है, और ये लिक्विड स्टेट है. तो ये वेपर अब वेपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये प्रेशर एक्सर्ट उस वक्त ज़्यादा करेगा जब और वेपर्स पैदा होंगे, they will be exerting pressure in every direction. So you can just say that these things are happening, right? These things are really happening कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर ज़्यादा मिकदार होने की वजह से. तो इसमें यही सेंसिबिलिटी आप ले सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ बेसिकली the pressure, right, which is exerted by the vapors of the liquid vapors, and equilibrium. Just I told you about that equilibrium with the liquid, यानी
they're gonna apply a pressure liquid के बराबर ये pressure होगा at a given temperature. Let's say we are just talking about all this phenomena at 25 degrees Celsius. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टूडेंट्स ये सब प्रोसेस होगा, राइट? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, लेट्स इंटरप्रेट टेम्परेचर नाउ, लेट्स टॉक अबाउट वेपर प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर. लेट्स टॉक अबाउट दैट. Okay, let me raise it for you. I hope you're getting something in it. Vapor pressure increase with temperature, that's my topic. Okay, vapor pressure increase with temperature. If we just think about water molecules, let's say that that's the open system and we are just trying to measure it out. मैं मोनोमेट्रिक मेथड आपको सिखाऊंगा, वेपर प्रेशर मेजर करने का एक तरीका है, लेकिन उससे पहले आई जस्ट रियली वांट टू डिस्कस कि कैसे जो है वेपर प्रेशर टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन से बढ़ता है. लेट मी जस्ट शो यू दैट कि लेट्स से दैट ये जो हमारे पास अभी बल्क है पानी का, लेट्स से ये 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो वेपर अब एटमॉस्फेयर के भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है? वेपर जो है दैट इज द वेपर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. लेट मी जस्ट मेक इट विद अ ब्लू मार्कर. लेट्स से दैट ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं जो मैंने ब्लू में थोड़े शो कर दिए हैं, और ये जो वेपर है दैट इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर, यू नो इट्स बीइंग देयर. ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर पे, एंड दैट प्रेशर विल बी इन टॉर. यू कैन जस्ट से दैट इट्स समथिंग लाइक 4.5 टॉर. अब इसी सिलेंडर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, राइट, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे और गोना टेक इट टुवर्ड्स 10 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले 0 डिग्री पे आपने ये बात की है, इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. 10 डिग्री पे मॉलिक्यूल्स की आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल है वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से जो है यू कैन से दैट कि पार्टिकल्स के अंदर मोशन ज़्यादा आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा मोशन की वजह से वेपर्स की जो बनने की मिकदार है, वेपर्स पैदा होने की मिकदार है, वो भी बढ़ जाएगी, और वेपर जो है वो 9.2 टॉर का प्रेशर लगाना शुरू कर देगा एटमॉस्फेयर की गैसेस पे. So you can just say that the atmospheric gases are there and the vapors of water are there, right, and they are exerting a pressure, right, and they are exerting a pressure of 9.2 torr, right, they are exerting a pressure of 9.2 torr, and that makes us clear that the pressure is being increased. The pressure is being increased. How the pressure is being increased? When we just think 0 degree है temperature, तो the kinetic energy is not that much. The vapor pressure is something like 4.5 torr. जब 10 degree temperature आपने show कर दिया, a lot of vapors are there, you know what, 9.2 torr pressure is being there. So pressure is being increasing factor for here. अच्छा, यही बात अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूँ at 90 degree and something like you're gonna discuss. Let me just show you 90 degree here, and let me just show you here 100 degree here, right? You know really well 100 degree पे water का vapor pressure क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा हो. It's something like 760 torr, right? 760 torr, and there will be something like 527.8 torrs. 527.8 torr. That will be the pressure which are being exerted by the. अब हम हिसाब लगाएं कि यहाँ पे 10 डिग्री का जो फ़र्क किया है हमने, वहाँ पे कोई 4 टॉर का डिफरेंस आ रहा था पिछले कैलकुलेशंस में, यानी यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग था और यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग था प्रेशर एट 0 डिग्री एंड समथिंग लाइक 10 डिग्री, राइट? अब 90 और 100 डिग्री में कंपैरिजन देखें आप. 527.8 टॉर एंड 760 टॉर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. स्टूडेंट्स, इसको आपने ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंगली लेना है. देखें यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, देयर इज समथिंग लाइक आई डोंट नो, इट्स समथिंग लाइक 2.250 टॉर से ज़्यादा मेरे ख्याल में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक? 5 6 7 एग्जैक्टली 250 टॉर से ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. तो अब ये 250 टॉर से ज़्यादा का डिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? वहाँ पे तो 10 डिग्री पे सिर्फ 4 टॉर का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे इतना
स्टूडेंट्स एक सिंपल सा इसका आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत से वेपर्स बन रहे हैं, बहुत से वेपर्स बन रहे हैं, और ये बहुत से वेपर्स बनने का मतलब है कि अ लॉट ऑफ प्रेशर. So as I told you that the vapor is exerting a pressure on the atmosphere, on the wall of the containers, or anything. जैसे आप you can just do it in your home. आप इसको एक कर सकते हो. बच्चों की एक्टिविटी आपने की होगी शायद, एक बोतल लें, बोतल में जो है वो एक बैलून फिट कर लें, एंड द बैलून के अंदर कोई हवा नहीं है, सारी हवा जो है वो बोतल में है. तो यू कैन जस्ट टेक दिस एक्सपेरिमेंट और इसको आप पानी में डाल दें, ठीक है. तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो सरफेस एरिया ज़्यादा लेंगे. इन द सेम केस स्टूडेंट्स, ये जो बैलून है फिर ये फूल जाएगा, ठीक है. इस तरह इन द सेम केस क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब वो लिक्विड फेज में होते हैं उनके डिस्टेंसेस कम होते हैं. फिर जब वो टेम्परेचर इनकी इंटरप्रिटेशन होती है, एवापोरेट करते हैं, मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द अपर सरफेस. मीन टू से कि टेम्परेचर की इंक्रीज करने से जो है दे आर टर्निंग देयर सेल्फ इनटू अ गैसियस फेज, and they are not only turning their self into a gaseous phase but also they are representing the pressure, and this representation of the pressure is very important and noticeable, and that is what we told that what does he say in this, that the vapor pressure is being there for that. You mean to say that presentation for the pressure is being exported by the scientist in the form of vapor pressure. So that's the idea what I'm letting you know about it, that the vapor pressure is going to increase with the increase of temperature. You can configure table number 4.3 for more information, and let me just go directly towards another table for you. Let me just show you different compounds are there जो कि मुख्तलिफ वेपर प्रेशर लगाते हैं. 20 डिग्री पे इन्होंने टेबल 4.4 भी बनाया है, जिसमें आइसोपेंटेन का 20 डिग्री पे वेपर प्रेशर 580 टॉर होता है, और इथाइल ईथर है उसमें 442 टॉर का प्रेशर है. इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है 170 टॉर प्रेशर लगाता है. स्टूडेंट्स, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि 87 टॉर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 20 डिग्री पे. एथेनॉल है 43.9 टॉर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. मरकरी सबसे कम कर रहा है विच इज़ 0.012 टॉर, एंड द लास्ट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है 0.00016 टॉर, यानी सबसे कम वेपर बनने की सलाहियत ग्लिसरॉल में है, इसलिए सबसे कम वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है. याद रखिएगा वेपर प्रेशर का बनना जो है वो थोड़ा सा IMF पे डिपेंडेंट होता है. IMF इज समथिंग लाइक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और इसके टॉपिक का भी आपको मैंने चैप्टर के आगाज़ में बता दिया था. देयर इज समथिंग लाइक डापल फोर्सेस, देन देयर आर समथिंग लाइक डापल इंड्यूस्ड डापल फोर्सेस, देन डापल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डापल फोर्सेस, जिसे हम लंडन फोर्सेस के नाम से पढ़ा था. इन द लास्ट वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये IMF जो फोर्सेस हैं, अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होती हैं, जैसे अब मैंने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको बताए हैं, डिफरेंट लिक्विड्स बताए हैं, इनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिक्विड्स, तो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिसकी बुनियाद पे आप कह लोगे इनके वेपर का बनना जो है डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर. और कुछ जो है 20 डिग्री पे बहुत वेपर्स कम बन रहे हैं, प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे. जो वेपर ज़्यादा बन रहे हैं 20 डिग्री पे उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा. खुद सोचें, अगर आप एक अफराद दरवाजे को धक्का लगा रहे हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो वो तोड़ भी सकते हैं दरवाजे को, और अगर एक ही फ़र्द है तो इट कैन डू एनीथिंग वेरी प्रॉपरली. आई एम जस्ट टॉकिंग द मेन गेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूम यू आर लिविंग इन, राइट. उसको तो एक आदमी भी तोड़ लेगा, अगर लोहे का होगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन इन दिस टॉपिक, दैट व्हाट द हेल वेपर प्रेशर इज, एंड what is the interpretation of the temperature toward the vapor pressure. And students, in my next lecture we're going to talk about something like measurement of vapor pressure, के vapor pressure का निकाला कैसे जाता है, हमें कैसे पता लगता है कि ये टॉर ये आ रहा है, ये टॉर ये आ रहा है. उसके लिए एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है which is मोनोमेट्रिक बैरोमीटर यू कैन से, और उससे जो है हम जो है यू कैन से दैट के लिक्विड से हम कोई भी लिक्विड जिसका हमने वेपर प्रेशर निकालना हो वो लिक्विड हम उस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मदद से हम जो है वो वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं. सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बोर्ड में एज अ लॉन्ग भी आपसे डिस्कस किया जा सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपने. और इसके अलावा भी जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, इसमें आपको कम से कम वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए. आप कम से कम 5 से 7 लाइनें वेपर प्रेशर के बारे में लिख सकें, और टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन की भी आपको
बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर के साथ क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना जो वेपर प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स में टेम्परेचर भी आ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आ रही हैं, ठीक है। 2 तो मैंने फैक्टर्स आपसे डिस्कस कर भी दिए हैं यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, and in my next lecture I'm going to let you know about monometric method. Thank you so much for this time. Stay on with me.